بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش کا آمد ہوئی۔ ملاقات میں ملکی داخلی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کا وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی اسلام آباد میں مظاہرین سے گفتگو کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا داخلی و سلامتی بارے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان، اور وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس ضمن میں ہدایات جاری کر دی ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش کا آمد ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی داخلی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کا وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی اسلام آباد میں مظاہرین سے گفتگو کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق بریف کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا داخلی و سلامتی بارے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس ضمن میں ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ گاڑیوں کے من پسند نمبرز خریدنے والوں کے لیے بری خبر ہے۔ سستے داموں پرکشش نمبرز کی نیلامیوں کے بعد پرکشش نمبرز کی بنیادی قیمتیں بڑھانے کی تجویز پر کیبنٹ کمیٹی نے منظوری دے دی ہے۔ 64 پرکشش نمبرز کی بنیادی قیمتوں میں 5 سے 10 گنا اضافہ ہوگا۔ ای آکشن میں 1، 3، 5، 7، 9 اور 786 نمبر کی بنیادی قیمت 10,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ ہو گئی ہے۔ ڈبل نمبرز کی بنیادی قیمت 7,500 سے بڑھا کر 50,000 کی جائے گی۔ ٹرپل نمبرز کی بنیادی قیمت 5,000 سے بڑھا کر 25,000 کی جائے گی۔ 999 نمبر کی سیریز میں باقی نمبرز ایڈوانس خریدنے کی صورت میں 10,000 روپے اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ کہ صوبائی وزیر لیبر محمد منشا اللہ بٹ نے سوشل سیکیورٹی رحمت للعالمین انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا۔ ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے انتظامی امور اور سروس ڈیلیوری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھرل بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ ایم ایس کی جانب سے ہسپتال کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر لیبر محمد منشا اللہ بٹ نے ہسپتال میں داخل مریضوں کی عیادت کی، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے علاج اور فراہم کردہ طبی سہولیات کے حوالے سے فیڈ بیک بھی حاصل کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ محنت کشوں کو بہترین علاج معالجے کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں، اور سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں جدید طبی آلات کی تنصیب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس ہوا۔ صدارت چیئرمین کمیٹی افتخار حسین چھچھر نے کی۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مالی سال 2022-23 کے آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے میو اسپتال میں بے ضابطگیوں کا نوٹس لیتے ہوئے مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ مالی بے ضابطگیوں کے باعث کمیٹی میں صرف میو اسپتال کے آڈٹ پیراز زیر بحث لائے گئے۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا اربوں کی ادویات لوکل پر چیز کی گئیں، جو رولز کی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ 30 دن میں آڈٹ پیراز کی مکمل انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرے۔ کمیٹی نے میو اسپتال کی کینٹین اور پارکنگ سٹینڈ سے 39 ملین کی ریکوری نہ ہونے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے راون رمضان سہولت بازار کا دورہ کر کے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب ممتاز نے بریفنگ دی کہ بازار میں آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 850 اور چینی 140 روپے میں دستیاب ہے۔ ڈی سی لاہور نے نرخ ناموں میں غلطی پر انتظامیہ کی سرزنش کی اور تمام اشیاء سرکاری ریٹ سے 10% کم قیمت پر فروخت کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے خواتین اور بزرگوں کے لیے الگ کاؤنٹرز فعال رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور تمام انتظامی خامیاں فوری دور کی جائیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ آئی ٹی پروجیکٹس میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شہریوں سے متعلقہ پولیس آئی ٹی سہولیات بڑھانے بارے تجاویز زیر غور آئیں۔ ایم ڈی سیف سٹیز اور ڈی آئی جی آئی ٹی نے آئی جی پنجاب کو ڈیجیٹلائزیشن امور بارے بریفنگ دی۔ پاکستان پولیس ایپ کے تحت ڈیجیٹل سٹیزن سروسز کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ انیشیٹو کے تحت پولیس رولز کو اپ ڈیٹ کر کے آئی ٹی پلیٹ فارمز میں مزید بہتری لائی جائے۔
IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना था कि पुलिस खिदमत मराकज से शहरियों के लिए ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट्स अंदराज इन्वेस्टिगेशन अमूर की ट्रैकिंग मुमकिन हो सकेगी। नातरा के इश्तराक से कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तालीमी असनाद समेत दीगर दस्तावेज़ात की ऑनलाइन तस्दीक यकीनी बनाई जाएगी। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ईरानी काउंसलेट में ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वॉइस काउंसिल से मुलाकात की। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। काउंसलेट में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। वफूद ने ईरानी काउंसलेट के वाइस काउंसिल मोहम्मद हुसैन हुसैनी से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ईरानी कौम से यकजहती का इजहार किया। समाजी रहनुमाओं, यंग जर्नलिस्ट्स, ट्रेवल एजेंट्स और सालार के वफूद ने ईरानी काउंसलेट का दौरा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द, सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़ेशान अजीज, साबिक CEO लेस्को मुजाहिद चट्ठा, एडवाइजर गवर्नर पंजाब राय यासीन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रुकन नवीद अनवार ने भी ताज़ियत की। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की तरफ से हम आज इजहार ताज़ियत के लिए आए थे। रहबर मज़म की शहादत पर पूरी ईरानी कौम से ताज़ियत करते हैं। इस मौके पर अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह बैनुल अक़वामी कानून को पामाल करके और अदल व इंसाफ के जितने मेयारात हैं उन्हें उनके बरखिलाफ़ ईरान पर जो हमला किया है, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हर कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम पर ईरान की हिमायत में और उसकी तायीद में खड़े होंगे। ईरान जो है वो हमेशा पाकिस्तान का इस्लामी जो भाई है वो मुल्क रहा है। हम ईरान के लोगों के साथ अनकंडीशनली हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हुकूक़ खल्क पार्टी का वफ्द भी मुज़म्मिल काकड़ की सरबराही में ईरानी काउंसलेट पहुंचा और ईरानी रहबर आला की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफूद ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। शुरका का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है। वाइस काउंसिल मोहम्मद हुसैन हुसैनी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है और ईरानी अवाम पाकिस्तान की जानिब से इजहार यकजहती पर बेहद मशकूर हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। मेयो अस्पताल में ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने खसूसी शिरकत की। मेयो अस्पताल की कोएबुलेशन कैंसर क्लिनिक में पहली कोएबुलेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग वर्कशॉप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर शुएब नबी, डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी, प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर खान शरीक हुए। डॉक्टर फैसल महमूद, डॉक्टर हसन बुखारी, डॉक्टर अब्दुल रऊफ और डॉक्टर इब्तिसाम ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी, डॉक्टर जुनैर मकसूद और डॉक्टर ताहिर कदीर खान मौजूद थे। वर्कशॉप में ट्रेनिंग हासिल करने वाले तमाम डॉक्टर्स को शील्ड से नवाजा गया। जनरल अस्पताल में हेल्थ प्रोफेशनल्स की आगाही और पेशा वराना तरबियत के लिए ग्रैंड क्लिनिकल लेक्चर का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल CMH मेजर जनरल रिटायर्ड सलमान सलीम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर शानदाना तारिक, प्रोफेसर आमना हसन चीमा, प्रोफेसर नाजिर सकलैन और प्रोफेसर फरहान रशीद ने शिरकत की। प्रोफेसर निगत हारून, डॉक्टर सारा ज़ेशान, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ और डॉक्टर नादिया राशिद भी तकरीब का हिस्सा बनी। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत दीगर सीनियर डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा की बड़ी तादाद भी लेक्चर में शरीक हुई। लेक्चर के दौरान जदीद तिब्बी तहकीक, मरीजों के बेहतर इलाज के तरीकों और तिब्बी अखलाकियात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत में फलाही इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। गवर्नर हाउस के दरवाजे यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए हमेशा खुले हैं। गवर्नर हाउस में यतीम और बेसहारा बच्चों के एजाज में दिए गए इफ्तार डिनर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में इफ्तार करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इस्लाम हमें यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत का सलूक करने का दर्स देता है। फलाही इदारों का यतीम बच्चों की किफ़ालत और उन्हें तालीम और तरबियत से आरास्ता करना काबिल सताइश है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर यतीम और बेसहारा बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो देकर उन्हें आगे आने के यकसा मौक़े फराहम करेगी। MK मलिक शहबाज अली खोखर की ग्रीन एकर्स दामन जामिया मस्जिद शहाबुद्दीन में हल्के के अवाम से मुलाकात, मकामी अफराद और कारकुनों की शिरकत। रमज़ान में सहरी और अफ्तार के इंतजाम, हल्के के मसाइल ज़ेर गौर आए।
ग्रीन एकर्स में जामे मस्जिद शहाबुद्दीन में MP मलिक शहबाज अली खोखर ने हल्के के अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुजाहिद भुट्टा, मलिक मुस्तनसर खोखर, मलिक आसिफ खोखर, मलिक अली हुसैन और शेख तारिक जमात समेत दीगर मौजूद थे। मुलाकात में रमज़ान के दौरान मस्जिद में सहरी और अफ्तार के इंतजाम समेत हल्के के मसाइल ज़ेर गौर आए। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने अवामी मसाइल के हल के आज़म का इजहार किया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्ज़जार कैंपस के एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। तलबा, वालिदैन और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। हॉल में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्ज़ाजार कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। डायरेक्टर प्रोफेसर एजाज हुसैन आवान, प्रिंसिपल प्रोफेसर अमरीन आलम और डायरेक्टर प्रोफेसर नबील एजाज ने खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाजी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डायरेक्टर प्रोफेसर एजाज हुसैन ने कहा कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन को चाहिए बच्चों को मेहनत की आदत डालें, उनको वक्त का पाबंद करें, उनको सॉफ्ट स्किल्स सुनाएं, उनको मैनर्स सिखाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे स्कूल का एक सबसे बड़ा वतीरा ये है कि हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं और उन्हें हर तरह से तालीम से आरास्ता करते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर अमरीन आलम ने नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों के फरोग पर रोशनी डाली। यूनिक की हमेशा से ये यूनिक पॉलिसी रही है कि हम ओवरऑल स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं, चाहे वो फिर निसाबी सरगर्मियाँ हो या हम निसाबी सरगर्मियाँ। हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को तमाम डोमेन्स में अपलिफ्ट करें। बच्चों ने इनामात हासिल करने पर मुसर्रत का इजहार किया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे लिए ये बहुत बच्चों की मेहनत का इधर हमें अवार्ड मिलता है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने पूरा साल बहुत मेहनत की और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेडल मिल रहा है और हर तालिब इल्म को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, इसका आज मुझे अवार्ड मिला है। मैंने पूरा साल अपनी मेहनत की, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, मैं बहुत खुश हूँ। वालिदैन भी खुश हुए और बच्चों को मजीद मेहनत की हिदायत की। मेरे बेटे की 4 क्लास में 3rd पोजीशन आई है अहमद अकील की, तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। ये हमारे सब्ज़ाजार में काफ़ी अच्छा इनका वो कैंपस है, तो हमें बड़ी खुशी हुई बच्चों को इसमें माशाल्लाह जो है वो जो इन्होंने प्रोग्राम किया है वो भी बड़ा अच्छा किया है। मेरी बेटी ने 1st पोजीशन हासिल की। मैं समझता हूँ कि एक तालिब इल्म की कामयाबी के पीछे उस्ताद की मेहनत और अदारे का डिसिप्लिन और सबसे जो इस अदारे की टीम है उसकी जो कमान करने वाली एक प्रिंसिपल है, जो कमान के तौर पर जो काम कर रही हैं मिस अमरीन आलम, वेरी हार्ड वर्कर है। उन्होंने पिछले चंद सालों से इस अदारे को काफ़ी चलाने में मेहनत की। तकरीब के दौरान तुलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प परफॉर्मेंसेस भी पेश की, जिसे शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।